Good evening, students. Hi, how are you? I know that that recently that the decision taken by the government that the plus two students that the exams that have been cancelled. I know that there is always a blessing in disguise, and you must cheer it up. Whatever happens, it happens always for a good. Now we have to prepare ourselves for the next coming years. But before that, now though the student those who are at present in plus two, those are preparing for plus two. It's my advice to those students कि बच्चे प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. प्रीवियसली बच्चे क्या करते थे, दे यूज टू वेट फॉर द एनुअल एग्जाम्स टू टर्न अप कि नहीं नहीं मैम हम तो एनुअल एग्जाम्स आएंगे उसी के नंबर जुड़ेंगे. और एंड दे नेवर यू कैन से दैट दे हैड टेकन केयर अबाउट द इंटरनल एग्जाम्स और प्री बोर्ड्स और द क्लास टेस्ट वर देयर एंड दे यूज टू टेक इट वेरी लाइटली. But now it's my advice to you. Now you can see that how this you can say drastic change has come. Previously annual exams they were considered, but now in class 2 or is it 10th class internal assessment marks are to be added. And suppose if throughout the year you won't be working hard, then how can you have your marks of internal assessment? Then of course nobody knows beta in the coming year what is going to happen in the next year. Nobody knows about that. Then you should be mentally prepared that whatever at present in your school it is running, your exams are there, class tests are there, pre boards are there, whatsoever is there, that you have to prepare it dedicatedly. And of course nobody knows beta that what is going to happen in the life, nobody knows. So it's my suggestion and advice, whatever your teachers are covering in the class, keep on revising side by side. And one thing more, those whose exams are being cancelled, but be in touch with your English, because English is such a subject that it is to be covered everywhere, wherever you join the course, BBA you join, BCA you join, wherever you go, that your writing skills are very very important, because there you will be learning that there you are asked to write a stories, you'll be asked to write an article or different kind of letters. Okay, now in this video, in today's video, I am going to cover your second poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. And this will be covering in two parts. In the first part, I'll let you know the first 14 lines, and in the second part again then I'll be covering. But this poem beta is really based on the present scenario, that what is happening to the children, those who are living in slum area. So now with this, now let's begin the first part of my poem, that is An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Okay beta, all the best. Now let's begin with that. Okay. Now let's begin An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Now beta, first of all I would love to discuss the theme of the poem. Is very very important. You all must know what is the theme of the poem. In an elementary school classroom in a slum, he paints a gory picture of slum children. Here he is representing a picture of slum children and their school where they do study, and the both victims of government apathy. How the people, those who are the renowned people, that those who are the in charge of these schools, how do they play with the emotions of these slum children. The poem is a scathing criticism of the complete neglect of these children's need for education and all round growth. बेटा अगर आप स्कूल में विजिट करेंगे ना इन द स्लम एरिया, एंड देन यू विल जस्ट स्टार्ट क्राइंग the way they are having their schools and they are under the custody of the government. Somewhere of course nobody goes there and open the private schools. Who is the stupid one will go there? And the government sectors are there, and you can see that those who are given the in charge by the government, and how those people are very corrupt. Whatever the aid they are given by the government, they just fill into their own pockets. And the poet here, he feels it very pitiable for these kind of children, and Spender describes the social injustice and class inequalities prevailing in the society, and calls for a holistic education for the poorest of the poor slum children. And this is possible only when we people they understand our responsibility towards the slum children, कि ये भी तो कोई बच्चे हैं, इनको भी तो ज़िंदगी में जीने का हक है, इनको भी तो पढ़ने का हक है. लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है in the society, that those who are poor people, we just dig them in the ground.
हम उनकी परवाह नहीं करते, वो जितने भी गरीब होते हैं हमारा एटीट्यूड उतना ही पुअर होता है उनकी तरफ. तो थ्रू दिस पोएम द पोएट स्टीफन स्पेंडर ही वांट्स अस टू टेक पिटी फॉर दीज चिल्ड्रन, गिव देम द you can say motivation so that they can come out from the slum area and they can improve the condition of their slum areas through the education. And moreover they are malnourished, they are undergrowth, okay, they are unprivileged. We need to help them just to come out from their slum areas. Now let's begin. And in this poem the poet he has used similes, metaphors, images and symbols. Similes means बेटा जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है while using like, जहाँ पे आएगा आई विल लेट यू नो. मेटाफोर्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम किसी को कंपैरिजन को इम्प्लाइड करते हैं. जैसे मैं कहती हूँ ही शी इज लाइक अ रोज, वो रोज की तरह है. अब मैं कहती हूँ शी इज अ रोज, तो ये क्या बन गया, मेटाफोर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कंपैरिजन इज इम्प्लाइड. और यहाँ पे इमेजरी भी यूज़ की गई है. इमेजरीज मतलब क्या होती है कि कुछ इमेजेस को, कि जैसे ही हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने इमेजेस बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन इमेजरी. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. What do you mean by gusty waves? Gusty means blowing strongly. These children faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor, and the tall girl with her way down hedge. And the paper seeming boy. What is a paper seeming boy means? एक दुबला पतला, very thin. And what is a paler hair means? Pale coloring of the face. Especially because of illness और fever. जब हमें fever होता है तो हमारा एकदम से चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है ना, तो but these people are malnourished. इनको खाना नहीं मिलता, संतुलित भोजन नहीं मिलता है. एंड वेट डाउन मीन्स बर्डन्स. तो नाउ व्हाट इज बीइंग गिवन हियर कि इस वाली स्टैंजा में कौन से बच्चों की बात की गई है. विच चिल्ड्रन आर रेफर टू हियर, द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स आर रेफर टू हियर. एंड देयर पेल फेसेस आर डिप्राइव्ड ऑफ द, उनके जो चेहरे हैं वो मुरझाए पड़े हैं, पीले पड़े हुए हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज दे आर इन द स्लम एरिया एंड दे आर malnourished. तो कहाँ पे बेटा उनको बबलिंग करना चाहिए था, उनको बच्चों की तरह एंजॉय करना चाहिए था, बट नाउ दे आर बर्डनाइज्ड विद द बर्डन ऑफ पॉवर्टी. एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव सिग्निफाई that instead of enjoying their childhood in the lap of nature, frisking freely means moving freely in the open grounds or beaches, their childhood is confined to the dark and dingy walls of the slums. कि ये बच्चे far that they are, you can say, neglected to be in the lap of nature. ये हमारी तरह नेचर की लैप में, गोद में नहीं खेल रहे हैं. ये बेचारे उनसे बहुत दूर कहाँ रह रहे हैं, एक डार्क सेल में, which is called as a slum area. And like a rootless weeds. अब देखो like आ गया ना इसके अंदर, like is a simile. The comparison has been drawn with the weak looking undernourished faces of the children. जैसे हम एक पेड़, उसके रूट्स को उखाड़ते हैं तो जो एक रूट्स होती हैं कैसे बिखरी हुई होती हैं, तो कहते हैं ये बच्चे हैं ना, इनके चेहरे के ऊपर पावर्टी की वजह से एक तो ये malnourished हैं, एंड मोर ओवर कि दैट हाउ देयर worn out faces मीन्स पेलर faces, that they are covered by their unkempt hair scattered like rootless weeds. Rootless suggests that these children they lack proper nourishment. इनके पास proper food नहीं है, इनके मुंह totally is withered away. जो उनका मुंह है, that their faces हैं, they are covered with the बाल बूल बिखरे हुए हैं, बेचारों के बॉडी में जान नहीं है. You can just imagine the condition of the slum children. तो then how is the tall, और उसी क्लास में एक टॉल गर्ल भी बैठी है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, explain weighed down head. वो बेचारी झुकी हुई है, उसकी कमर झुकी हुई है, नीचे सिर करके बैठी हुई है. वाई? बिकॉज शी इज ऑल्सो बर्डन्ड बाय द लोड ऑफ द पॉवर्टी and the trials and turbulations of life, problems of life. She is subdued and suppressed, and her body and her head have been bowed down with the, क्योंकि जो उसकी लाइफ में बेटा मिसफॉर्चून्स है ना, उसकी वजह से बेचारी बहुत टूट चुकी है, और वो बेचारी इस पॉवर्टी के चक्कर में इन द क्लासरूम दैट शी इज सिटिंग विद हर हेड डाउन. हियर द पोएट इज गिविंग यू द इमेजेस, दैट हियर ही इज ट्राइंग टू गिव यू द सिनेरियो ऑफ द स्लम स्कूल, कि किस तरह से वहाँ जो बच्चे बेचारे बैठे हैं, किस तरह से वो जैसे बबलिंग करने का टाइम है, एन्जॉयमेंट करने का टाइम है, एजुकेशन लेने का टाइम है, उसकी बजाय बेचारे क्लास में बैठे हैं. वहाँ एक पेपर सा थिन सा बच्चा बैठा है, whose eyes, see the next one what is given here. What is the comparison drawn with rat's eyes? The poet compares the eyes of the boy to those of a rat because of the poor undernourished child. He is deprived of the basic amenities of life. What are the basic amenities of life? क्या होती है? AMENITIES.
बेसिक क्या होती है एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ? हमें खाने के लिए फूड चाहिए होता है, रहने के लिए हमें शेल्टर मकान चाहिए होता है, यही होता है ना, पानी पीने के लिए चाहिए होता है। तो कहते हैं जो बच्चा है ना, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज बेसिक एमिनिटीज़ के लिए होती है। कपड़ा नहीं है उनके पास, खाना भी नहीं है, और एक अच्छी सी लिविंग भी नहीं है। और जो उसकी आंखें हैं ना, हिज आइज़, रैट आइज़ बोला गया है, उसकी आंखों को क्या बोला गया है? चूहे की आंखें। मीन्स मेटाफर यूज़ हो गया यहाँ पे, लाइक नहीं बोला कि उसकी आंखें क्या हैं, चूहे की आंखें जैसी हैं। आप देखना, आप घर में कभी कोई माउस होता है तो जैसे आप देखते हो कि वो इधर उधर देख रहा होता है, डर रहा होता है, इनसिक्योर फील करता है, और खाने की आप कभी लगाना उसे पिंजरा लगाना है ना, तो उसमें क्या होता है, जब चूहा आता है तो पहले देखता है क्या है, कोई है तो नहीं है, फिर डर 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 के फूड को लेने की कोशिश करता है। सिमिलरली द चाइल्ड सिटिंग इन द क्लासरूम, दैट हिज आइज आर इनक्विजिटिव एंड टिमिड लाइक द आइज ऑफ द रैट आर, ही इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर फूड एंड द सिक्योरिटी। वो बच्चा अपनी सिक्योरिटी भी देख रहा है, और मोर ओवर ही इज फीलिंग ही इज मैल नरिश्ड एंड ही इज लुकिंग फॉर द गुड फूड। नाउ लेट्स जस्ट रिपीट इट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन, slum area children faces are like rootless weeds, or their hair torn round their faces, yellow faces. And in the same classroom, one girl is sitting with her head down. Why? Because she is also a poverty stricken. और उसी classroom में क्या बैठा है? One boy is seated over there, that one who is very lean and thin, and his eyes are rat eyes, means he is also looking for the food. His eyes are inquisitive, that he is feeling insecure in the class, that his eyes are looking for the food. I hope so this first sentence is clear to you. The next one is there. The stunted unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarl disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room. Other than this, now what is being conveyed here? Who is being referred to these lines? Again, a thin slum boy who is seated over there, and he is stunted. What do you mean by stunted? Why is he stunted? Not properly grown because of the poverty stricken only. जिस बच्चे को खाना नहीं मिलेगा बेटा, उसकी बोन्स की ग्रोथ कैसे होगी? वो तो मुड़ जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। और इन बच्चों का क्या है? ये तो आयर्स हैं। आयर्स मीन सक्सेसर्स हैं, जो उनको प्रॉपर्टी में माँ बाप से मिला है तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। अब माँ बाप पुअर हैं तो बच्चे भी वैसे ही पुअर बनेंगे। माँ बाप को खाना नहीं मिलता तो बच्चे को कहाँ से ला के देंगे? तो यू कैन सी इन दीज लाइन्स, द स्टंटेड अनलकी आयर of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. Why is he referred to as an unlucky heir? उस बच्चे को क्यों बोला गया है? क्योंकि उसको अपने पापा से क्या मिला है? अपने सक्सेसर की फॉर्म में क्या मिला है? उसको एक गरीबी मिली है, पावर्टी मिली है, डिजीज मिली है, एंड सैडनेस, डिस्पेयर. His body is deformed and his bones are twisted. That's why it is given here, the stunted unlucky heir of twisted bones, and reciting means अपने फादर से जो उसने एज अ सक्सेसर लिया है वो ये सब चीज़ें ली हैं, नार्ड डिजीजेज लिए हैं. नार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्विस्टेड है, रफ टफ है, उसकी बोन्स के बहुत मतलब दैट दे आर टोटली रफ, ट्विस्टेड. एंड वाई ही इज रेफर टू एज ए अनलकी आयर? उसको क्यों बोला गया? अभी मैंने किया था, बिकॉज ऑफ हिज father, because his father is also poverty stricken. And explain, यहाँ लिखा हुआ है, reciting a father gnarled disease means, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि that he is the carrier of his father's poverty. And who sits at the back of the class? जैसे मैंने बाद में किया था, एक बहुत सुंदर सा बच्चा, दुबला पत्ता सा बच्चा बैठा है पीछे वहाँ पे, that but his, उसकी आंखों में क्या है? In his eyes, that his eyes are gleaming with the dreams. देखो बेटा, जैसे हमारे होते हैं ना आईज में ड्रीम्स होते हैं, हम भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये भी तो इंसान है, ये भी तो हमारी तरह बच्चे हैं, और ये भी तो आप लोगों की तरह, हमारी तरह लोग हैं कि जो भी अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, ये भी तो चाहते हैं कि हमें दुनिया में सब कुछ मिले. तो बट लेकिन हमारे में से कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम कभी इनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं. और हमारे समाज की ये व्यथा है कि those who are poor, they always remain as a poor. If they try to come out now, but we would never let them come out. फिर आगे वो क्या कहता है? Explain. His eyes, his eyes live in a dream. His eyes live in a dream means among the worn out slum children there is one unsung hero. उन सब बच्चों के बीच में एक बच्चा है बेटा, कुछ ना कुछ तो होते हैं ना, लोग होते हैं, तो वो क्या, ही इज कॉल्ड एज अ अनसंग हीरो. वो गाना तो चाहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसका वहाँ पे. एंड हिज आईज आर लिव, दिखाओ ना, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम. उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं दुनिया के. हिज आईज आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स एंड आर नॉट सैड एंड मॉर्बिड. वो नहीं डर रहा. What he is sitting at the corner? He is sitting at the corner. See what is given here. The stunted unlucky heir, that of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk
एंड एट बैक ऑफ द डिम क्लास एक बच्चा वहां पे और बैठा है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और जिसकी आंखों में क्या है, उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज ड्रीम्स एंड हिज डिजायर्स. What is the comparison drawn? लिखा हुआ ना squirrel's game. What is that squirrel's game? Is the word is given here that his eyes live in a dream of squirrel's game in a tree room other than this. Means just as a squirrel frisk and frolics. जैसे एक वो देखिए आपने गिलहरी ऊपर नीचे भागती है ना ट्री के ऊपर, सिमिलरली जो बच्चा है ना उसकी आईज में जो ड्रीम्स है ना वो भी फ्रिस्क एंड फ्रॉलिंग कर रहे हैं विद द होप्स फॉर द फ्यूचर कि कभी मुझे भी फ्यूचर में इधर उधर जाने का मौका मिलेगा. इवन ही कैन ऑल्सो गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. आई होप सो दिस स्टैंजा इज ऑल्सो क्लियर टू यू. Then the next one is given there on SAR, cream walls, donations. What do you mean by the SAR? The SAR, it is called as a sour. SOUR. What is a SAR? Means मतलब खट्टा इसको बोलते हैं. अनसार क्रीम, इसका एक्सप्रेशंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन लाइंस का बेटा ये मतलब होता है कि कभी भी उनके स्कूल में कोई विजिट के लिए आता है तो कोई डोनेशन देके जाता है तो जो उनकी वॉल्स हैं जो कि बहुत सैडनेस ऐड करती है. बेटा आप कभी घर में देखना, पेंट नहीं करवाना, जो आपकी घर की दीवारें हैं बहुत पुरानी हो जाती है तो आपको घर बहुत गंदा गंदा लगना शुरू होता है, कुछ लाइवलीनेस नहीं अच्छा लगता आपको, बहुत सैडनेस ऐड करता है. तो वही तो सेम है इनके स्लम एरिया में बच्चों की जो वॉल्स है ना बेटा, वो आप कभी विजिट करना स्लम एरिया में, आप में से कईयों ने विजिट भी करा होगा, बट डू विजिट इन अ स्लम एरिया. इट एड्स सैडनेस एंड डिस्पेयर टू देयर लाइफ, क्योंकि वहाँ कोई सफाई नहीं होती, कोई वाइट वॉश करने वाला होता नहीं है, जो उनके पेंट्स हैं वॉल्स हैं सब उतर गए होते हैं वॉल्स के ऊपर से. तो इट एड्स व्हाट डिस्पेयर इन देयर लाइफ. एंड देन व्हाट हैपन्स, व्हाट ही सेज, द एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट द पुअर एंड द इल इक्विपमेंट environment of the slum school, the sour cream walls of the school which were probably painted with the help of donations further add to the pale and sad ambience of the poem. कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो वहाँ की वॉल्स हैं when they are not properly painted it adds despair to them. हाँ, जब कभी डोनेशन आती है, if any visitor comes and visit, only then the walls get painted. Shakespeare's head, see how ironical this Shakespeare head is being over there. The expression is ironically used in an elementary classroom in a slum. अरे जहाँ पे पढ़ाई तो होती नहीं है और वहाँ पे किसका पोस्टर लगा रखा है, वहाँ पे वर्ल्ड मैप भी लगा रखा है, वहाँ पे शेक्सपियर का पोस्टर भी लगा रखा है. अरे भाई तुम्हें क्या पता शेक्सपियर कौन है कौन है, ही इज वन ऑफ द मेन ड्रामाटिस्ट, वन हु इन सो मेनी ड्रामाज आर देयर, और तुम उसके सपने दिखा रहे हो जो कभी पढ़ेंगे नहीं, उनके बारे में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कभी उन्होंने देखा नहीं उसको, और तुम उसके ड्रीम्स दिखा रहे हो उनको. व्हाट द फन इज देयर, व्हाट द आयरनी इज देयर. Then where the value of education is minimal and reference in Shakespeare or a good literature, oh my god, it means again we are playing with their emotions. हम लोग उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं. And then why the poet has used this word, this image use की गई है, cloudless dawn, it is called as an image. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बीच में स्लम स्कूल है, उसके आस पास लंबी लंबी वॉल्स बनी हुई हैं, सिटी पीपल दैट दे आर लिविंग ओवर देयर, और उनको तो वहाँ से स्काई भी नज़र नहीं आता बच्चों को, वो इतने घिरे पड़े हैं, चारों तरफ पॉल्यूशन है, बीच में चारों तरफ वॉल्स हैं ऊंची ऊंची, और उनको तो स्काई भी नज़र नहीं आती है. तो इट इज़ गिवन दैट व्हाई हैज़ द पोएट यूज्ड इमेजेस ऑफ क्लाउडलेस डॉन एंड सिविलाइज्ड डॉन. का यहाँ मतलब क्या है, तो दीज इमेजेस ये क्या हाईलाइट करती हैं, द मोनोटनस एंड द डल लाइफ इन द अर्बन स्कूल. द एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम इज सो स्क्वीज्ड, ऐसे पिछका पड़ा है ना चारों तरफ से कि अंडर द सो कॉल्ड लंबी लंबी वॉल्स बनी हुई हैं, हाई डॉम्स बनी हुई हैं कि बच्चों को दिखता ही नहीं, क्योंकि आकाश भी है, सारा दिन तो उस गंदगी में रहते हैं बच्चे बेचारे. एंड दे आर ओवर रिडन बाय द, वो बेचारे चारों तरफ से जो कंक्रीट है सिटीज़ का है उसके बीच में दबे रहते हैं बेचारे बच्चे. और उनके रूम्स में एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, बैलेड, फ्लारी, ट्रायलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप. ये सब क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि उनके वहाँ पे रूम के अंदर फ्लावर्स लगाए हुए हैं, उनकी फोटोज़ पोस्टर्स लगाए हुए हैं, वैलीज लगाए हुए हैं. अरे ये तो बेचारे नेचुरल ब्यूटी से वैसे ही डिप्राइव्ड है. तो जब आप उनको सपने दिखा रहे हो तो उनको दिखाओ भी तो सही ना. हम उनको क्यों दिखा रहे हैं, उनको तो यही नहीं पता फ्लावर्स होते क्या हैं, बैलेट क्या होता है, दैट व्हाट इज अ बैलेट एंड व्हाट इज अ ट्रायलेस्ट वैली, उनको पता ही नहीं है. दैट दीज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि व्हाट काइंड ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. तो दीज आर द ऑल ब्यूटीज ऑफ द नेचर, बाउंटीज ऑफ नेचर. ठीक है. द स्लम चिल्ड्रन पास मच ऑफ देयर लाइफ रेकिंग इन द गार्बेज. वो बेचारे सारी उम्र तो गार्बेज इकट्ठा करते रहते हैं, स्लैग होता है, कभी एंजॉय नहीं करते, उनको यही नहीं पता कि व्हाट आर द फ्लावर्स एंड व्हाट आर द माउंटेन्स एंड व्हाट आर द वैलीज, उन्हें यही नहीं पता, और उनको हम ये सपने दिखा रहे हैं. एंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, व्हेन दे विल सी
कि दुनिया भर का वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मैप इज़ देयर, तो डेफिनेटली बेटा उनकी इच्छा करेगी ना कि हम इसको भी एक्सप्लोर करें। अब हम लोग मैप में देखते हैं, वर्ल्ड मैप में, अच्छा ये वाली कंट्री यहाँ है, ये वाली कंट्री है, पापा हमें ये दिखाना, मम्मी हमें वो दिखाना, तो वो किसको बोलेंगे? उनका तो मैप वही है ना, उनका स्लम एरिया है ना वहाँ पे। तो जब हम उनको स्लम से निकालना नहीं चाहते तो हम उनको सपने क्यों दिखा रहे हैं? तो दिस इज व्हाट द पोएट हियर सिंपैथाइजेस विद द स्लम चिल्ड्रन। व्हाट ही सेज, द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द क्लासरूम इज सिंबॉलिक ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस फॉर ए लुक। जब हम देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम इसे बियॉन्ड है, इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है ना। वी शुड गो इन टू द लैप ऑफ नेचर टू एंजॉय द बाउंटीज ऑफ गॉड, बट द वर्ल्ड फॉर दीज चिल्ड्रन कंप्राइजेज ऑफ द फिल्थ। ये तो बेचारे गंदगी में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, और हम इनको बड़े बड़े मैप्स दिखा रहे हैं। नाउ ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशन, शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized storm riding all cities, ballad flurry, troilus valley, open handed Mac। ये सब चीज़ें क्लास में तुम क्यों लगा रहे हो शेक्सपियर को? और उनकी सिटीज़ का हाल देखो ना, स्लम एरिया को, हाउ दे आर सराउंडेड बाय द सिविलाइज्ड डॉम्स, बैलेड है, फ्लारी है, ट्रायलेस वैलीज हैं, है ना। देयर टू मच बाउंड्रीज ऑफ गॉड, नेचर की चीज़ें हैं। आप वहाँ पे क्लास में ओपन एंडेड मैप लगा रहे हो। व्हाट द फन इज देयर, व्हाट द आयरनी इज देयर, व्हाट द फन वी आर डूइंग विद द स्लम चिल्ड्रन। एंड येट फॉर these children, these windows, not this map, their world where all their future is painted with the fog। जो उनका बेटा जिंदगी है जैसे एक फॉग होती है, पूरी धुंध में वो कवर्ड है बेचारे, उन्होंने तो कभी धुंध से बाहर आए नहीं। द पोएट हियर रिक्वेस्ट यू ऑल, एडवाइजेस टू कमिंग जनरेशन, टुडेज जनरेशन, please do something for these kind of children also. They are also like you, they also want to bubble like you, they want to enjoy in the nature of life, they also want to explore the world, but we people all are playing with the emotions of these children. What comprises the world for these children? The world for these children is confined within the walls of their slum. They may get glimpses of the beautiful world outside from the windows, but उनके पास जो windows है वो बाहर तो झांक लेते हैं, लेकिन वो बाहर आ नहीं सकते। द रीज़न बिहाइंड दैट, उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, जब पैसा करेंगे लेंगे तो वो चोरी चिकारी में फिर मार खाएंगे, एंड नो बडी इज देयर टू हेल्प देम, व्हाट दे कैन डू इट। एंड नाउ व्हाट फ्यूचर मीन्स, नाउ देयर फ्यूचर वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग, दैट देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ देयर लाइफ। उनको खुद भी नहीं पता बच्चों को कि हमने कहाँ जाना है। तो नाउ इन दीज स्टैंजास, वट एवर टिल नाउ आई हैव टेकन द स्टैंजास ऑफ दिस पोएम, दैट द पोएट advises, he suggests, that he requests all the readers, those who are reading this poem, better do sympathize with these children, have a sympathy for them, that we should need to be sympathized, better they need it, because they are undernourished, they are malnourished, they are poor, they are weak, they are the carriers, they are the successors of poverty, but we have to break this chain ना बेटा, कोई ना कोई तो इस चेन को तोड़ेगा। तो he is demanding from today's generation कि बच्चे आप जाओ, उनकी हेल्प करो, और किसी तरह से उनको भी हमने ये स्लम एरियाज को बंद करना है, so that they can earn their living in a very respectable manner and they can live a life. Okay, now in this video I have taken a first part of this poem. In my second video that you will come to know about, that I will be sharing part 2 of this poem, and I hope so that you have understood. Beta, any line, any sentence, any word is not clear to you, you can just write in the comment box, and do like and share my video and subscribe too, because I want to reach to each and every child who is in the remote area where there is a lack of the faculty. Thank you beta, have a nice day. Thank you beta, bye bye.